Hello everyone. So today we will be seeing the new chapter of your science textbook, that is gravitation. So students, gravitation is a very familiar topic and you have heard about this topic in your earlier classes also. So you might have heard about the physicist Johannes Kepler and the well-known scientist Sir Isaac Newton. So both these persons have contributed a lot towards the discoveries in the field of gravitation. Universal law of gravitation by Sir Isaac Newton as well as laws of motion is given by Sir Isaac Newton, which are the very famous laws of that you study in physics. Similarly, Kepler's planetary motion and the laws of planetary motion is very famous. So both these laws, universal law of gravitation by Newton and Kepler's law of planetary motion, we will be studying in this chapter. Along with this, we will be seeing the various topics, which is the gravitational force or the gravity, Newton's law of gravitation, properties of gravitational force, universal gravitational constant, Kepler's law of planetary motion, which is a very important law, Newton's second and third law along with gravitation. What do you mean by free fall of the bodies? You have read about acceleration. So here in this chapter we'll be studying about acceleration due to gravity. Then in the first chapter of physics we read about the equations of motion. So here in this chapter we'll be seeing the equations of vertical motion, that is the equations applied when the motion is from top to bottom, that is in a vertical direction. Then we will be studying about the basic difference between mass and weight. The other topics that we are going to study in this chapter will be thrust and pressure, pressure in the fluids, Archimedes principle, the principle of flotation एंड डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स हमारे इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि कवर हो एंड इसको समझने के लिए आगे के टॉपिक्स को आपको देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास देन. द टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और सिंपली एज ग्रेविटी. सो बच्चों, आप लोगों को पता है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स center of the earth, all the bodies are getting attracted. So there is a force which is necessary to produce a motion in a body. We have seen कि ये force कैसा होना चाहिए बच्चों, ये force unbalanced होना चाहिए, तभी एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है. ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. A body dropped from a height falls towards the earth indicates that the earth exerts a force of attraction which is commonly known as gravity. तो बच्चों आपने देखा है जो भी बॉडी होती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज नोन एज gravitational force of earth. So the force with which the earth pulls the object towards it is known as gravitational force. The gravitational force between the sun and the earth keeps the earth in a uniform circular motion around the sun. तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, it revolves around the sun. So you have seen that ये रिवॉल्यूशन के लिए एक जो नेसेसरी फोर्स है जो इसको सन के चारों ओर बाइंड करके रखता है, इसको दूर नहीं जाने देता,
दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट होता तो अर्थ वुड नॉट हैव मूव्ड अराउंड सन। सिमिलरली द प्लैनेट्स, जितने अदर प्लैनेट्स हैं मूविंग अराउंड सन, दैट वुड नॉट हैव बीन possible. Similarly, the satellites like Moon, which is an artificial satellite of Earth, would not have revolved around Earth in the absence of the gravitational force. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। आपको बच्चों मैंने बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। Similarly, centrifugal force is the force because of the revolution of the body. तो अगर आप इमेजिन करें, अगर ये रोप होती और एक स्टोन है विच इज़ टाइड टू द रोप, एंड द रोप if it is cut from a place, then the stone would have moved in this direction. It would not have revolted around in a circle. ये रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा होता। तो रिवॉल्यूशन के लिए व्हाट इज़ दैट फोर्स? तो स्ट्रिंग के केस में जो टेंशन है, जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में, दैट इज़ द फोर्स विच इज़ कीपिंग द स्टोन टू मूव कंटिन्यूसली मूव इन एन ऑर्बिट। सिमिलरली अर्थ के केस में ये जो फोर्स आता है व्हेन इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल राइट, सो gravitational force is responsible for many phenomena. It is responsible for holding the atmosphere above the earth. तो बच्चों, जो अर्थ के चारों ओर जितनी भी एनवलप ऑफ गैसेस है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, सो इट इज़ देयर एंड इट इज़ नॉट एस्केपिंग out of Earth's gravitational pull because the gravitational force is holding it back. Okay, it is not allowing the atmosphere to go away. Similarly, the rain which is falling on the earth, अगर gravitational force नहीं होता तो ये जो पानी की बरसात की बूंदें हैं ये अर्थ पर नहीं फॉल होती। Similarly, the flow of waters in the river from top position to a bottom position, आपने देखा होगा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो करता है। इसका रीज़न है बच्चों ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए ये ऊंचाई से थोड़े नीचे इलाकों में पानी बहता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट होता तो ये नहीं होता। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, हम अपनी बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो इट इज़ होल्डिंग अस बैक। अगर हम जंप कर रहे हैं तो दोबारा वापस ज़मीन पे आते हैं। अगर हम कोई बॉल या कोई स्टोन को थ्रो करते हैं टॉप में, तो दैट इज़ ऑल्सो इट फॉल्स बैक। तो आपने देखा होगा जब आप एक स्टोन को थ्रो कर रहे हो तो वाई इट कम्स बैक, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग इट बैक। सो ऑल द फिनोमिनाज linked around us are basically because there is a gravitational force, without which it would have been a difficult thing. So the revolution of moon and all these phenomena are because of the gravitational force of the earth. So the gravitational force between the earth and the moon is also responsible for the tides in the sea. If I ask you why the tides are moving and why there are the high tides during the case of full moon and during the case of new moon, तो बच्चों उसका बेसिक सा एक रीज़न है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं इसे अर्थ बोलूं और ये एक ऑर्बिट बनाऊं मून की, तो सपोज़ इस जगह पे सन है ना, सन इज़ हियर। So in that case, this is the position when the new moon will be there, जिसको आप क्या बोलते हो, अमावस।
दिस इज अ पोजीशन ऑफ फुल मून, जिसे आप कहते हो पूर्णिमा। इसके बाद देर आर द अदर फेजेस ऑफ मून जो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसमें गिब्बस मून, क्रिसेंट मून, ये सभी आप पढ़ चुके हो। तो पहले क्रिसेंट आता है, फिर फर्स्ट क्वार्टर, देन देर इज़ द गिब्बस मून। तो अलग अलग स्टेजेस होती है ना। फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा दिस इज़ द पोर्शन विच इज़ द डार्क पोर्शन। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर में आप लोगों को पता है कि दिस पोर्शन बिकम्स डार्क। सो बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द टाइड्स? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फुल मून के केस में एंड न्यू मून के केस में द अर्थ एंड द मून along with sun, they are into a same line. Other than this, they are not in the same line. So in this position, when all the three are lining together and they are aligned, this is the position when the gravitational force of the moon and that of sun is added upon. तो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एड ऑन हो जाता है, बिकॉज दे आर अलाइंड इन द सेम पोजिशन, बिकॉज ऑफ दिस द हाई टाइड्स आर सीन ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून। अदर देन दिस आपकी जो टाइड्स हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाई देती। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी सी द हाई टाइड्स ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून, बिकॉज all the three earth, moon and the sun, they align themselves in a single line. तो बच्चों जो टाइड्स होती हैं दे आर बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ मून। ऐसा कारण इसीलिए है कि मून इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बीइंग नियर टू द अर्थ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। ऑल्दो सन के कारण भी टाइड्स होती हैं, पर दैट इज़ the sun's gravitational force as compared to moon's gravitational force which is responsible for tides is only 40 to 45%. The major part of the gravitational force which is responsible for the formation of tides is coming from moon. So you should remember this thing. Okay, so here you can see, ये एक बच्चों डेमोन्स्ट्रेशन है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये मून जो है अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ है बच्चों, और इसके चारों ओर मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो आपने ये देखा कि न्यू मून का केस हो, फुल मून का केस हो या न्यू मून का केस हो, इस केस में सन इस जगह पे होगा। ओके, सो इन दोनों ही केसेस के अंदर जब ये इनका अलाइनमेंट एक लाइन पे होता है, जब इनका अलाइनमेंट एक लाइन पे होता है, तो जो टाइड्स हैं, तो आप लोगों ने देखा जैसे इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, जैसे अभी ये मून है, ये मून जैसे इस पोजीशन पे आता है टाइड की कंडीशन ये है, यानी हाई टाइड्स आती हैं। इसी तरीके से जैसे ही फुल मून पे पहुंचता है अगेन हाई टाइड्स आती हैं। बाकी टाइड्स, इन टाइड्स हाई टाइड्स की पोजीशन को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है बच्चों? द स्प्रिंग टाइड्स आर द टाइड्स विच इज़ हैपनिंग इन द केस ऑफ न्यू मून एंड फुल मून। तो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं वो स्प्रिंग टाइड्स कहलाती हैं। इसके अलावा जो क्वार्टर पे, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की बात करें या हम थर्ड क्वार्टर की बात करें, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इस टाइड को हम नीप टाइड्स बोलते हैं। वी टॉक अबाउट नीप टाइड्स, एंड इन दीज टू पोजीशन, न्यू मून एंड फुल मून पोजीशन, द टाइड्स आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So these are some facts which will be required for your optional reading part only. They will not be asked in your CBSE exam, although you must be aware of these facts.
So first fact is the gravitational force of the moon is 1/10 millionth that of earth से बहुत कमज़ोर होता है. But you know that when you combine it with the other forces like centrifugal force, which is because of the movement of earth on its axis, and due to the rotation and revolution of earth, those forces combined with the gravitational force of the moon is responsible for formation of tides. The sun's gravitational force, as I have already told you, it is only 46% of that of moon, which is responsible for creation of tides. The sun's gravity also produces tides, but since the forces are very small as compared to the forces of moon, these tides are of small size. The tides are not caused by the direct pull of moon's gravity. बच्चों ये याद रखना, it is not caused by the direct pull of moon's gravity. The moon is pulling upwards the water while the earth is pulling it downward. Slight advantage to moon, and thus we have the tides. तो tides जो है that is because of the resultant gravitational force. Gravitational force of the earth is pulling the water back, and the gravitational force of the moon, it is in the opposite direction. Ultimately there are the tides which is created of the resultant force. So whenever, this is most important, this topic we have already discussed, the moon, earth and sun, when they are aligned themselves and when they are in a same line, the gravitational pull of the sun is added into that of the moon, and because of this we get high tides. तो हाई टाइड्स हमको क्यों मिलती हैं? बिकॉज मून, अर्थ एंड सन, दे आर अलाइंड इन द सेम लाइन. ऑल राइट, सो द स्प्रिंग टाइड्स यू हैव सीन ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून आपको स्प्रिंग टाइड्स मिलती हैं, अदरवाइज नीप टाइड्स मिलती हैं. सो देर आर द अदर इंफॉर्मेशन लाइक बे ऑफ फंडी. बच्चों, बे ऑफ फंडी इज ए प्लेस इन नोवा स्कॉटिया, कैनेडा, and it is the place in which the tides are of this height 44.6 feet. जो highest tides हैं बच्चों वर्ल्ड में बे ऑफ फंडी में है, and it is in नोवा स्कॉटिया, कनाडा. सो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं. One more thing is that because the earth rotates on its axis, the moon completes one orbit in our sky every 25 hours. And we should not get it confused with that 27-day of orbit of moon around the earth. And because of this there are two tidal peaks as well as two tidal troughs. Peaks क्या होते हैं बच्चों? जब tides अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उसको हम कहते हैं टाइडल पीक्स, और टाइडल ट्रफ्स क्या होते हैं? जब वो बहुत नीचे होती है. तो इस तरीके से ट्रफ्स एंड क्रस्ट आपको समझ आना चाहिए. ये जो है इस तरीके से जो है, तो ये तो कहलाता है बच्चों ट्रफ्स, और ये है इसका पीक या इसको क्रस्ट बोलते हैं. तो ऐसे दो टाइडल पीक्स एंड दो टाइडल ट्रफ्स आपको मिलते हैं पूरे दिन में. तो ऐसा कब हो रहा है? जब हमारे पास में दो वेव बने. तो दो वेव क्यों बन रही हैं? बिकॉज इन 25 आवर्स द मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट. तो 25 आवर्स में मून कंप्लीट करता है, तो इस टाइम पे दीज इवेंट्स आर सेपरेटेड बाय 12 आवर्स. तो इन दोनों के बीच में, हाई पीक्स के बीच में और लो ट्रफ्स के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज़ 12 आवर्स. 12 आवर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है 24 आवर्स लग रहे हैं. तो इसका आधा 12 आवर्स में होगा कंप्लीट, लगभग 12 आवर्स में. ओके, देन since the moon moves around the earth, it is not always in the same place at the same time each day. तो ऐसा होता ही है, moon is moving around the earth, so it is not at the same place at same time. Because of this the time for the high tide and low tide change by 50 minutes. तो ऊपर नीचे प्लस माइनस 50 मिनट्स का हमेशा इसमें वो टाइम का लैग रहता है. The type of gravitational force that causes the tides इज़ नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स. तो बच्चों ये जो फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ कॉजिंग द टाइड्स, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है ट्रैक्टिव फोर्स. इसका नाम है बच्चों ट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ आपके लिए
हाईलाइट कर दूँ मैं, इसको आप नोट कर लीजिए. व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स? द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द टाइड्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स. Okay, so moving ahead, we will be studying now the Newton's law of gravitation. बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, तो इसको हमें ध्यान से समझना है. बेसिकली ये लॉ क्या कहता है, तो इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ. कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ जिनका एक मास है, सपोज करो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके बीच में लेट अस एज्यूम इनके सेंटर्स जो हैं, इनके बीच सेंटर से सेंटर है ना बच्चों, याद रखना, इनके बीच की डिस्टेंस r है, यानी इसके सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है. तो न्यूटन ने ये बताया बच्चों कि there is a force of attraction which is acting along the line joining these centers and it is directly proportional to the product of the masses. यानी it is directly proportional to, इनका प्रोडक्ट करिए m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इसका मास 1 है, 1 kg है ना, आपको पता है kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, और इसका मास 2 kg है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 2. तो इसको मैं कैसे बोल दूँ, प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 2. सो m1 इज़ योर 1 kg, m2 इज़ 2 kg. सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, मीन्स व्हाट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 2. अब अगर मैं इसको 1 की जगह 10 लिखता और इसको 2 की जगह 20 लिखता तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता, force would have been proportional to 10 multiplied by 20, that is 200. तो आपने ये देखा कि अगर मासेस को इंक्रीज करें तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा, दैट द फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी, विच मीन्स दैट इफ द मास इज इंक्रीजिंग, mass of the bodies are increasing, the force will also increase. सेकेंड जो इस यूनिवर्सल लॉ में कहा गया was that the force is inversely proportional to the square of the distance. तो मैंने ये बताया था दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज़ हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस है r तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सपोज करो हम लोग कहें 10 मीटर दे आर सेपरेटेड, तो r की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर. मीटर इज़ द यूनिट फॉर डिस्टेंस. सो अगर मैंने 10 डिस्टेंस ली है 10 मीटर की, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 10 स्क्वायर, दैट इज़ 1/100. तो ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 1/100. दैट मीन्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 0.01. अब अगर मैं इस r को रिप्लेस कर दूं बच्चों 100 से, उस केस में फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/100 स्क्वायर. 100 का स्क्वायर करिए, तो 1/100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 4 0. 4 0 का मतलब क्या होता है 10,000, यानी 0.1231 और 1, 0.0001. तो कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल हुआ, पहला वाला फोर्स पावरफुल हुआ. इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि अगर ये डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम हो जाता है, अगर डिस्टेंस उनके बीच में कम है तो फोर्स ज़्यादा है. तो F इंक्रीज होता है बच्चों जब R डिक्रीज हो, अगर R इंक्रीज हुआ तो F डिक्रीज हो जाएगा. तो इन दोनों फोर्सेस को न्यूटन ने समझाया कि इनको क्लब कर दिया जाए. अब m1 m2 पे तो डिपेंड कर ही रहा है, पर ये r स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इनको मैंने एक साथ में इस तरीके से लिख दिया. तो अब मैं यूँ बताऊँ आपको कि अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को मुझे इक्वल टू से रिप्लेस करना हो तो मुझे एक कांस्टेंट यूज़ में लेना होगा. ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाता है यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये इसकी हमेशा वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जरूर काम करेगा, यानी कि इस प्रोपोर्शनल साइन को जब भी आप रिप्लेस करोगे इक्वल टू से, तो आपको जी यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू ये फिक्स है। इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो बच्चों, जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे पता करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों, आर की जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर, तो स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, आर स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मासेस की यूनिट होती है केजी, तो आप जब मासेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केजी इंटू केजी क्या मिलेगा आपको, केजी स्क्वायर। तो बच्चों, न्यूमरेटर में तो आपको केजी स्क्वायर मिला और डिनोमिनेटर में आपको मीटर स्क्वायर मिला। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इट इज़ गिवन बाय द नेम न्यूटन, बिहाइंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से, कैपिटल एन से। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, ये जो फोर्स है इसको, इसकी यूनिट्स की अगर मुझे अंदर बात करनी है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ की जगह पे मैंने न्यूटन लिखा, जी को मैंने रहने दिया क्योंकि इसकी यूनिट मुझे पता करनी है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द मासेस की जगह मैंने लिख दिया केजी स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊँ और केजी स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जी की यूनिट हो जाती है बच्चों, द यूनिट ऑफ जी विल बी इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट है बच्चों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये केजी जो डिनोमिनेटर में गया है अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये यूनिट आप याद रखें, ये कई बार पूछी जाती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू मैंने आपको बताया ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बच्चों, इसको हम देख सकते हैं, दो बॉडीज़ हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया है, इनके बीच में लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स will be the line in which the force will be acting. So force is proportional to the product of their masses, it is proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So in general I can write it in this way, F is proportional to m1 into m2 upon r square। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब मैं कांस्टेंट से रिप्लेस करूँगा तो इक्वल टू आ जाएगा। सो प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह पे अब मैंने इक्वल टू यूज़ कर लिया, और ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। what are the properties of the gravitational force? So you have seen that it is the weakest force। बच्चों, weakest force क्यों कहा जाता है, strongest force है न्यूक्लियर फोर्स। weakest force इसलिए है कि इस फोर्स के अगेंस्ट हम आसानी से सारे काम करते हैं। if you have to walk, you are walking against this force, so you are able to use your muscular force to overcome the gravitational force। इसका मतलब आपका मस्कुलर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। इसी तरीके से आपने बॉल अगर थ्रो करिए ऊपर, तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस बॉल को थ्रो किया था। हालांकि ये फोर्स जो है कम होता जाता है और टॉप पे पहुंच के जहां इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद में बॉल दोबारा फॉल करने लगती है। बट ये जो डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर लिया, इसका मतलब किसके अगेंस्ट ट्रैवल किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ट्रैवल किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द muscular force you are using. Similarly, magnetic force, you have seen that magnets are also able to attract each other or repel each other, and that is also against the gravitational force.
So gravitational force is weakest force in the nature, although the distance up to which the gravitational force is acting is very large. तो कहाँ तक काम करेगा आपको पता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब तक ये r इनफाइनाइट नहीं हो जाता, क्योंकि 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो जब तक ये r इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए कि 1/r², 1/इन्फिनिटी 0 हो जाए, यानी कि फोर्स आपका 0 हो जाए, तब तक फोर्स लगता रहेगा। यानी कि तो इसको हम बोलेंगे दैट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स है ये ना। एंड इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि 1/r² के ये प्रोपोर्शनल है। सो इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। बट यू हैव सीन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और डिटेल में देखने के लिए मेरे जो दूसरे यूट्यूब के ऊपर चैनल मैंने बनाया है, वहाँ आप जाकर के इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और भी समझ सकते हैं। देन it is a mutual force, that is the force exerted by the first body on the second body, and similarly the second body also attracts the first body with the same force. So Newton's third law is valid. Then it is a central force, ये एक central force है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी के सेंटर की तरफ हमेशा ये एक्ट करता है। देन इट इज़ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये अभी हमने देख ही लिया, मास पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों पे डिपेंड जरूर करता है। इट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज ऑल्सो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देन इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स बच्चों। लॉन्ग रेंज फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों भी लॉन्ग रेंज होते हैं, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। सो इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इसका मतलब ये है कि एयर हो चाहे वाटर हो, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही वैल्यू से लगता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कोई ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मीडियम भले ही कोई सा भी हो, वाटर हो, गैस हो, चाहे कुछ और मीडियम हो, तो उस पर डिपेंड नहीं करता ये, वहाँ पर भी फोर्स सेम रहता है। ऑलराइट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने इसका देखा, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपने देखा है पर kg स्क्वायर। So this is all students for today. So in the next class we will be moving with the next topics of the chapter. So तब तक के लिए have a good day. Please do subscribe the channel. Thank you very much. Bye bye.